یہ بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یہ بات ہے اللہ کے جلال کی۔ یہ بات ہے ایک عظیم شہر نینوے کی۔ ہمارے باپ دادا انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کوئی نقصان نہیں آیا۔ یہ کہانی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی، جب دنیا پر اسیریا اشور کی سلطنت کا سورج پوری طاقت سے چمک رہا تھا۔ دجلہ دریا کے کنارے آباد وہ عظیم شہر جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے۔ We offer incense and wine. Watch over us, mighty ones. نینوے جسے اپنے وقت کا سب سے طاقتور اور خوبصورت شہر مانا جاتا تھا، جو آج کے دور میں عراق کے جدید شہر موصول کا حصہ ہے۔ یہ شہر اپنی تجارت کے لیے مشہور تھا، اپنی دولت پر مغرور تھا اور اپنی طاقت کی وجہ سے اسے ایک ہولناک اور خوفناک شہر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتے اور طاقت کے نشے میں چور رہتے تھے۔ یہاں کے بادشاہ کی ایک عظیم اور مقدس رسم تھی، وہ ایک شیر کو ارینا میں اپنے ہاتھوں سے مارتے، پھر اس کے سر پر شراب چھڑکتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اسی عمل سے ان کی سلطنت محفوظ اور طاقتور رہتی ہے۔ یہ شہر روحانی طور پر مر چکا تھا۔ یہاں کے لوگ خدائے واحد کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشی گئیں بے جان پتھر کی مورتیوں کو اپنا مالک اور معبود بنا لیا تھا۔ Guide us with your wisdom. ان کے دیوتاؤں کے نام اشتر، آشور، داگو وغیرہ وغیرہ تھے۔ ہر گلی، ہر چوراہے اور ہر گھر میں بت پرستی کا راج تھا۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا اشتر تھا، جسے یہ جنگ اور محبت کی دیوی مانتے تھے۔ Accept our praise. دوسرا ڈیگن، جو آدھا انسان اور آدھا مچھلی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، اور جس کی پوجا یہ اس لیے کرتے تھے کہ سمندر اور دریاؤں سے انہیں رزق ملے۔ جبکہ تیسرا معبود اشور تھا۔ یہ لوگ ان بے جان مورتیوں کے سامنے اپنے ماتھے جھکاتے، ان سے مدد مانگتے اور یہ یقین رکھتے کہ یہی پتھر کی مورتیاں ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ Mighty ones. نینوا کے لوگوں کی گمراہی صرف شرک تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کا معاشرہ ظلم اور درندگی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ نینوا کے اس اندھیرے میں جہاں گناہ کو ہنر سمجھا جاتا تھا، ضرورت تھی ایک روشن چراغ کی، جو انہیں یہ بتائے کہ ان پتھروں میں کوئی طاقت نہیں، کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تب اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا جائے۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے چنا گیا یونس علیہ السلام کو، جن کا مکمل نام یونس بن متا تھا، جنہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نسل یعقوب سے تھے۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا شروع کیا، دن بدن گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں انہوں نے وہی پیغام دہرایا۔ بتوں کی عبادت مت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ سورج، چاند یا ستاروں کو سجدہ مت کرو، اس کو پہچانو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن نینوا کے لوگ جو دولت کے نشے میں تھے، انہوں نے سچائی کی طرف اپنے کان بند کر لیے۔ 33 سال تک یونس علیہ السلام نے انہیں حق کی طرف بلایا۔ صرف 2 لوگ ایمان لائے، صرف 2۔ باقی لوگوں نے یونس علیہ السلام سے کہا، ہمارے پاس بہت سے ناجومی، علماء اور فنکار موجود ہیں، پھر بھی تم اکیلے کھڑے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ پھر بھی تم اکیلے کھڑے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ ہمارے باپ دادا انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، کبھی کوئی نقصان نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نے آنے والے وقت کے بارے میں اپنی قوم کو ڈرانا شروع کیا۔ ایک عذاب آ رہا ہے۔ وہ لوگ مسلسل ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے، آنے دو عذاب، ہم یونس کی باتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ باتیں سن کر یونس علیہ السلام کا دل سنجیدہ ہو گیا۔ بولے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری تباہی کے حوالے کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے اپنا سامان باندھا اور نکلنے کی تیاری شروع کر دی، اس خوف سے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب اب نازل ہونے ہی والا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ نینوا سے بہت دور چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ کا عذاب انہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ نکل گئے۔
लेकिन यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम से एक खता हुई। उन्हें चाहिए था कि वो इस इलाके को छोड़ने से पहले अल्लाह की वही का इंतजार करते। तमाम अंबिया जब अपनी कौम को अल्लाह के अजाब की खबर वही के जरिए सुनाते हैं तो पहले अल्लाह की इजाजत और वही का इंतजार करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ते हैं। कुरान में आया है, और ज़ुन्नून मछली वाले यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो गुस्से में निकल गए और समझ बैठे कि हम उन्हें हरगिज आजमाइश में नहीं डालेंगे। जब वो साहिल पर पहुंचे, एक जहाज रवाना होने के लिए तैयार खड़ा था। Men on this log. We need more jars below deck. यूनुस अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। जहाज के कैप्टन ने उन्हें पहचान लिया और कहा, खुशामदीद यूनुस अलैहिस्सलाम। जहाज चलने लगा। शुरू में समंदर पुरसुकून था, लेकिन फिर अचानक मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई और लहरें ऊंची उठने लगी। जहाज तूफान में फंस गया और डूबने लगा। Hold fast! Pull the ropes! We're losing the mast! वो जहाज से सामान फेंकने लगे ताकि बोझ हल्का हो जाए। जहाज भारी है। सामान फेंको! तब किसी ने आवाज दी, चलो कुरा डालो। उनमें से कोई मनहूस है, कुरा डालो। उनकी एक रस्म चल रही थी कि अगर शिप तूफान में फंस जाए तो समझते थे कि कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भाग आया है। फिर वो कुरा अंदाजी करते थे और जिसका नाम निकल आए उसको फिदिया के तौर पर समंदर में डाल देते थे ताकि तूफान रुक जाए। कश्ती बहुत भारी हो गई है, कुरा डालते हैं, देखते हैं किसका नाम निकलता है। तो कुरा अंदाजी शुरू हो गई। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उन्होंने कहा, नहीं, यूनुस तो बहुत नेक है। ये नहीं हो सकता, ये नाइक आदमी है। फिर दोबारा कुरा डाला गया। दूसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। लोगों ने फिर कहा, फिर से डालो। और जब तीसरी बार कुरा डाला गया तो इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तो बस यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में फेंक दो, ये तूफान मेरी वजह से है। तो अल्लाह की अजमत देखो, वो गुलाम यूनुस अलैहिस्सलाम ही निकले जो अपने आका यानी अल्लाह की इजाजत के बगैर निकल गए थे। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। वो समंदर की गहराई में डूबने लगे। अचानक एक बहुत बड़ी व्हील मछली की नजर शिकार पर पड़ी और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम व्हेल मछली के पेट में थे और इधर कौम पर अजाब आना शुरू हो चुका था। गहरे और खौफनाक बादल आसमान पर छा गए। ऐसा भयानक मंजर था कि लोग खौफ के मारे भागने लगे। Run for cover! The gods are angry! Save us, Ishtar! To the temple, quickly! ऐसा लग रहा था कि शायद आसमान अभी फट जाएगा और इन पर गिर पड़ेगा। ये मंजर देखकर कौम पर खौफ तारी हो गया। उन्हें आद, तमूद और नूह की कौम की तबाही याद आने लगी। कहीं हमारा अंजाम भी ऐसा ही ना हो जाए। कौम समूद और कौम आद के लोगों का अंजाम भूल गए हो क्या? अब उन्हें यकीन हो गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कहते थे। यूनुस सही कहते थे, अजाब वकई आ रहा है। ये अजाब उन पर 3 दिन तक मंडलाता रहा। वो रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे, तौबा करने लगे। या अल्लाह, हम तेरे सिवा किसी और को रब नहीं मानते, हम तौबा करते हैं। और 3 दिन बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और वो गहरे खौफनाक बादल हटा लिए। वो खुश हो गए और उन्हें एक और मौका दिया और एक दूसरे से गले मिलने लगे। लाखों की तादाद में लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की सालहा साल की तबलीग ने कोई असर ना दिखाया, लेकिन जब अजाब के आसार नजर आए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। फिर वो यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे और कहने लगे, अब हम उनकी बात मानेंगे। लेकिन ये 3 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम व्हेल मछली के पेट में थे। तो आप सोचिए वो कैसा मंजर होगा, कितना खौफ होगा।
कुरान में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों के नीचे थे, यानी रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और व्हेल मछली के पेट का अंधेरा। इतना गजब अल्लाह को अपने बंदे पर आया था कि अपने नबी को 3 अंधेरों के नीचे भेज दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसी शदीद मुश्किलात में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। वहां से सिर्फ एक ही जात निकाल सकती थी और वो है अल्लाह। वो उम्मीद छोड़ चुके थे, दिल रंजीदा और गमगीन था। वो अल्लाह से दुआ करते, माफी मांगते और तौबा करते थे। फिर उनकी जबान से वो कलिमात निकले जिन्होंने अल्लाह का जलाल खत्म कर दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका, तू पाक है, तुझसे गलती नहीं हो सकती। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही हूँ जिसने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी खता की। कुरान में ये भी आता है अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मुझे मछली के पेट में इन्हीं अल्फाज के साथ याद ना करते तो वो कयामत तक इसी मछली के पेट में रहते, यानी मछली का पेट कयामत तक के लिए उनकी कब्र बन जाता। जब 3 दिन और 3 रात के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर डाला तो उनका जिस्म बहुत डैमेज हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन पर कद्दू का पौधा उगा दिया जो उन पर साया कर रहा था और सूरज की तेज धूप से बचाव का जरिया बना हुआ था। उसके बाद वो फिर से सस्टेन हुए। जब वो वापस अपनी कौम में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा इनकलाब आ चुका था। सारे लोग रब्बना रब्बना पढ़ रहे हैं, सारे नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं। ये एक ऐसा चमत्कार हुआ था जो इससे पहले ना हुआ था ना बाद में होगा पूरी इंसानी तारीख में, और किसी के लिए नहीं हुआ कि एक कौम पर अजाब मुकर्रर हो चुका था फिर भी अजाब नहीं आया। और ये एक ऐसा गैर मामूली और एक्सेप्शनल वाकया था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए प्लान में पूरी इंसानी तारीख में और किसी के लिए नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, ऐसी कोई बस्ती नहीं आई जो अजाब के वक्त ईमान लाई हो और उस ईमान ने उसे फायदा दिया हो सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब हटा दिया और उन्हें एक और मौका दिया। फिर वो यूनुस अलैहिस्सलाम से गले मिलने लगे और कहने लगे, हमें दीन सिखाओ। यूनुस, हमें अल्लाह की इबादत और दीन सिखा दें, हमारी रहनुमाई फरमा दें। और इस तरह उस कौम को एक और मौका मिला क्योंकि उनका नबी उन्हें वहीं से पहले ही छोड़कर चला गया था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब आप गम में डूबे हो, गुनाहों से भर गए हो और जब कोई रास्ता न बचे तो वही करो जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया। अपनी गलती मानो और उस एक जात को पुकारो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि कुरान में आता है कि जो कोई मुझसे यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, किसका इंतजार कर रहे हो भाई? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।